Hello students, after the discussion of proportional counter, now next type of gas field detector is GM counter, which is Geiger-Müller counter. Now in case of Geiger-Müller counter, the external voltage which is applied between the electrodes is now increased beyond the proportional region. And this external voltage now lie in region 5. And this region 5 is Geiger-Müller region, as you can see in this graph. If external voltage is increased beyond this limit, then now in GM Muller region, gas multiplication factor becomes so large. About gas multiplication factor we had discussed in previous video, and it is represented by capital M. Now this gas multiplication factor becomes so large that there is complete breakdown of the insulating property of gas, and discharge takes place inside the gas chamber. If gas field detector operates in this region, then even a single ion pair produced by a single incident particle can produce an electric discharge inside the gas chamber. So this counter is sensitive to even very low energy radiations. And also you can notice another important feature about GM counter is that the size of electric pulse produced in this discharge region is same whatever the energy of incident particle may be. As you can see in this graph, here one pulse is for beta particle and one pulse is for alpha particle. आप देखिए कि जब प्रोपोर्शनल रीजन तक अगर वोल्टेज अप्लाई की जा रही है, देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पल्स registered by beta particles and pulse registered by alpha particle. But if voltage increased beyond this certain limit, now after this certain limit there is no difference between the pulse registered by alpha particle or beta particle. So you can see here that GM counter produce electric pulse of same size whatever the energy of incident particle may be. This GM counter also works on the same principle that whenever an energetic charged particle enter inside the gas chamber, then it will ionizes the gas molecule by inelastic collision and produce ionization that lead to production of ion pairs, and these ion pairs then collected at their respective electrodes and will register a pulse at the output of detector that will help to detect the incident particle. So first discussing about the working of GM counter, see the construction of this counter. Now in this counter it consists of copper cylinder which is about 1.5 centimeter in diameter, and its length is between 2 to 100 centimeter depending upon the purpose for which it is to be used. And now this copper cylinder, walls of this copper cylinder is connected with the negative terminal of high tension battery, which act as cathode for the ion pairs produced by incident particles. Now along the axis of this cylinder, fine tungsten wire is passed which is about 0.1 millimeter in diameter. This is very fine wire and is fastened at one end of this copper cylinder with the help of insulator. And this fine tungsten wire is connected with positive terminal of high tension battery and will act as anode. And one free end of this tungsten wire is covered with glass bead to avoid corona discharge built at
the sharp point of this fine wire. Now this copper cylinder is filled with noble gas, either neon or argon. In this cylinder there is some volatile compound is also mixed, so that this volatile compound will act as quenching vapor. और quenching टर्म के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. तो इस गैस सिलेंडर में आर्गन गैस फिल की जाती है और इसके साथ कोई वोलाटाइल कंपाउंड भी ऐड किया जाता है, विच इज़ ईदर इथाइल एल्कोहल. दिस आर्गन and ethyl alcohol mixture is filled at total pressure of about 10 centimeter of mercury column, and the ratio of argon to ethyl alcohol is about 10:1. And the potential difference which is between anode and cathode is approximately in range 1000 volt to 1200 volts. In some cases this gas cylinder is filled with neon gas and mixed with halogen traces. These may be either bromine, which is used as quenching vapor. If neon gas is filled with bromine, means mixed with either traces of halogen, then the total pressure of this tube gets lower, and potential difference which is required so that this counter act in GM region is also lowered, and this voltage may be between 300 to 400 volts. Now one side of this copper cylinder is act as a entrance window for incident radioactive particles, and this side is covered with either thin mica sheet, and particles which are to be detected are incident on this side. Now how this GM counter will detect incident particles? See, हमने प्रोपोर्शनल काउंटर में भी डिस्कस किया था कि अगर सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री कंसीडर की जाए तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ बिटवीन दिस एनोड एंड कैथोड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड was proportional to the reciprocal of distance from this anode wire. और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था? इलेक्ट्रिक फील्ड was at distance r is equal to v naught over r log natural log of b over में a, जहाँ a क्या था? रेडियस ऑफ दिस फाइन वायर एंड b was the रेडियस ऑफ दिस कॉपर सिलेंडर. और हमने ये डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है between these electrodes is inversely proportional to the distance from the anode wire. So जैसे जैसे एनोड वायर से डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है. तो इसका क्या मतलब है कि नियर एनोड वायर देयर इज़ वेरी हाई फील्ड स्ट्रेंथ. तो जैसे ही इंसिडेंट पार्टिकल इस गैस चैम्बर में एंटर होते हैं तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयन पेयर प्रोड्यूस करेंगे, और पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव होंगे और इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर की तरफ मूव होंगे. सपोज कि अगर एक पार्टिकल एंटर हो रहा है इस गैस चैम्बर में और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, देन even a single electron can trigger second avalanche at different position inside the GM counter. क्योंकि GM काउंटर के केस में जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की गई है वो इतनी ज़्यादा है कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है नियर एनोड, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इस हाई
फील्ड में एंटर करते हैं तो उसके थ्रू वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि जब वो अपने पाथ में आने वाले गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, देन दे ट्रिगर सेकेंड एवलेंच इनसाइड द जीएम ट्यूब। आप इसे इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखिए, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो ये पाथ शो किया जा रहा है, दिस इज़ द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर जीएम ट्यूब में अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे, तो आप देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये क्या कर रहा है, फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है। किस तरह से कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब फर्दर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, कि क्योंकि जो एनोड वायर है उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई है, जिसके कारण जो प्राइमरी ओरिजिनल आयन इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, जब ये एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये अदर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें भी आयनाइज कर देगा। तो किस तरह से कि ये एक इलेक्ट्रॉन फर्दर एक अनदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और ये आगे ड्रिफ्ट होगा एनोड वायर की तरफ। इसी तरह अब ये प्रोड्यूस हुआ, फर्दर एक और प्रोड्यूस करेगा और ये खुद भी ड्रिफ्ट होगा एनोड वायर की तरफ। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी फर्दर नेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा और ये खुद भी ड्रिफ्ट होगा। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, इनसाइड गैस चैम्बर देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन और से एवलांच सिस्टम सेटअप इनसाइड दिस गैस चैम्बर। तो आप यहाँ से देखिए कि किस तरह से जीएम ट्यूब में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रजिस्टर करता है आउटपुट में पल्स। तो जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्दर एवलांच सेटअप कर रहा है यहाँ, और जब इससे प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव होते हैं, तो आप यहाँ देखिए कि इस सेकेंड एवलांच में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन्स, ये जब फर्दर गैस एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट होने के बाद गैस मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो फोटोन का एमिशन करते हैं। ये फोटोन या तो अल्ट्रावायलेट फोटोन्स होंगे या फिर विजिबल फोटोन्स होंगे। तो इन फोटोन्स के पास भी इतनी एनर्जी है कि जब ये फोटोन्स फर्दर या तो गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर कैथोड सरफेस के साथ इंटरेक्ट करें, तो यहाँ इंटरेक्ट होने के बाद ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह से प्रोड्यूस हुए फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, अनदर एवलांच सिस्टम सेट करेंगे। आप यहाँ से देखिए फिर से कि फर्स्ट जो इवेंट है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी वजह से एनोड वायर के पास एक सेकेंड एवलांच ट्रिगर हो रहा है। तो ये इन सेकेंड एवलांच में प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स भी जब गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, तो क्या करते हैं, फोटोन का एमिशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटोन्स इतनी एनर्जी के फोटोन्स हैं कि जब ये फर्दर या तो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या कैथोड सरफेस से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके बाद फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करते हैं। अब ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स भी जब एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो ये फर्दर एनदर एवलांच सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एवलांच सिस्टम से प्रोड्यूस हुए फोटोन्स जीएम ट्यूब में अदर पोजीशन पर नेक्स्ट एवलांच सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं। इसी तरह इस एवलांच सिस्टम में प्रोड्यूस हुए फोटोन्स से फर्दर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ये क्या कर रहे हैं, अनदर एवलांच सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी भी है कि ये फोटोन्स कैथोड सरफेस के साथ इंटरेक्ट करें, तो उससे इंटरेक्ट होने के बाद ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्दर एवलांच सिस्टम सेटअप कर रहे हैं। तो इस तरह से जीएम ट्यूब में अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्रिएट हो रहा है तो उस सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण भी इनसाइड जीएम ट्यूब एट डिफरेंट पोजीशन नेक्स्ट एवलांचेस सेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया गया है एनोड और कैथोड वायर के बीच में वो सफिशेंटली हाई है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि
जो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है गैस की वो क्या है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है, और जिसके थ्रू इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन भी आउटपुट में एक प्रॉपर पल्स, प्रॉपर हाइट की पल्स रजिस्टर करता है, जिसे फर्दर एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो जीएम काउंटर की ये इम्पोर्टेंस भी है कि जीएम काउंटर के केस में जो आउटपुट में पल्स ऑब्जर्व होती है, उस पल्स की इतनी सफिशेंट हाइट है कि फर्दर इसे एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, थ्रू विच कि जो आउटपुट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट विल गेट सिंप्लीफाई बाय दिस प्रॉपर हाइट पल्स। सो इस तरह से जीएम काउंटर में हम इंसिडेंट पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से एक बात देखिए कि जैसे कि हमने प्रोपोर्शनल काउंटर में स्टडी किया था, प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या था कि जितने भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स फर्दर सेकेंड एवलांच सिस्टम को सेट कर रहे थे। और इसी तरह जो सीरीज़ थी उस केस में, जैसे कि हमने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, देखिए कि उस केस में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या था, m इज़ इक्वल्स टू n प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में n क्यूब p क्यूब प्लस में एंड सो ऑन। इस तरह से हमने देखा था, ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जहाँ ये n क्या है, n इज़ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट होते हैं तो ये फर्दर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल थे, एन पी के, कि अगर पी प्रोबेबिलिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने की, किन से, जी जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल थे, एन पी के। तो नेट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, एन सेकेंडरी की वजह से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एन पी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इन एन स्क्वायर पी फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के फोटो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। मे बी हेयर एन स्क्वायर, आई राइट इट अगेन, दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दिस वॉज एम इज इक्वल्स टू एन प्लस में एन स्क्वायर पी प्लस में एन क्यूब पी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बिकॉज एज यू कैन से कि ये एन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्दर एन पी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब ये एन स्क्वायर पी फर्दर कितने प्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट एन पी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से सीरीज़ सेट हो रही थी इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर। आप जीएम काउंटर में देखिए कि क्या डिफरेंस है फ्रॉम दैट ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर, कि जीएम काउंटर के केस में यहाँ जो एन पी फैक्टर है, आपने देखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाज इक्वल टू एन ओवर में 1 माइनस एन पी, और सीरीज़ क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी। और प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में एन पी की वैल्यू लेस देन 1 थी। बट नाउ इन केस ऑफ this GM counter, this NP is now greater than 1। और सीरीज़ क्या है, इस केस में सीरीज़ डाइवर्ज करती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप हायर टर्म्स में मूव करेंगे सीरीज़ में, तो नंबर ऑफ आयन पेयर्स ट्यूब में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जीएम काउंटर के केस में जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये क्या करता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन भी अगर एक सिंगल पार्टिकल से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, गैस चैम्बर में मल्टीप्लिकेशन इतनी, आयन पेयर की मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा लार्ज हो जाती है कि हमें आउटपुट में एक प्रॉपर हाइट की पल्स ऑब्जर्व होगी फॉर इवन अ सिंगल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये डिफरेंस है प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर में। बट
जीएम काउंटर के केस में आप देखिए कि जब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्दर सेकेंडरी एवलांच सेट कर रहा है और इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्दर क्या कर रहे हैं, टाउनसेंड एवलांच कर रहे हैं, तो इस तरह से जो आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके पास प्राइमरी आयनाइजेशन की मेमोरी नहीं होती। इसका मतलब कि जीएम काउंटर के केस में हम इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इतना लार्ज हो जाता है दैट देयर इज़ डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इनसाइड दिस जीएम ट्यूब। तो इस तरह से जो आउटपुट में हमें पल्स ऑब्जर्व होती है, नाउ दिस पल्स विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द primary ionization produced by incident particle and we will not able to measure the energy of incident particle that will register pulse at the output of detector. So this is how GM counter वर्क्स। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सिंगल पिक्चर शो की हुई है कि देखिए कि अगर जीएम ट्यूब में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी एवलांच सिस्टम डेवलप कर रहा है। अब इस सेकेंडरी एवलांच सिस्टम में जो गैस मोलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे, ये एक्साइटेड एटम्स क्या करेंगे, जब डी एक्साइट होंगे तो यूवी फोटोन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये यूवी फोटोन्स जब फर्दर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या कर रहे हैं, इनसाइड जीएम ट्यूब नेक्स्ट एवलांच सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो प्राइमरी आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है और इसके थ्रू जो एवलांच सिस्टम सेट हो रहा है दैट इज़ प्राइमरी एवलांच, और इन प्राइमरी एवलांच के थ्रू जो नेक्स्ट एवलांच सेट हो रहे हैं दीज आर सेकेंडरी एवलांचेस। अब इस एवलांच में भी फर्दर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन के सेकेंडरी एवलांच सिस्टम को सेट करेंगे। सो इस तरह से जीएम काउंटर में हमें क्या मिलती है, आउटपुट में पल्स ऑब्ज़र्व होती है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि क्यों जो टंगस्टन वायर है वो किस तरह से ली जाती है, बहुत फाइन वायर ली जाती है। देखिए इस तरह से ये सेंटर में क्या शो की हुई है, एनोड वायर, और ये आउटर सिलेंडर फेस है। तो यहाँ अबाउट फाइन वायर, नियर फाइन वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन केस ऑफ जीएम ट्यूब, कि इस हाई फील्ड स्ट्रेंथ में जब इलेक्ट्रॉन फर्दर ड्रिफ्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इस तरह से एवलांच सिस्टम को सेट कर देते हैं। सो इन दिस वे दिस जीएम काउंटर विल वर्क। आप इस एनिमेटेड पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फोटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसके थ्रू क्या है, जो रेड कलर में शो किए हुए हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करें, एनोड वायर पर पहुंच रहे हैं, और आयंस जो ग्रीन कलर से शो किए हुए हैं दीज आर आर्गन आयंस, ये क्या होंगे, कैथोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड वायर पर पहुंचेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उन्हें अट्रैक्ट करेगा, और जब आयंस पहुंचेंगे कैथोड पर तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर फर्दर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमें आउटपुट में एक पल्स मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इंसिडेंट पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट इन जीएम काउंटर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि अब डिस्चार्ज क्या है, जो हमने देखा कि जो गाइगर काउंटर में जो कंडीशन है डिस्चार्ज जिस तरह से सेट हो रहा है दैट एन पी नाउ इन दिस केस विल बी ग्रेटर देन 1, और जो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो सीरीज़ क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। क्लियर। आप इस पिक्चर में देखिए कि जैसे ही आयन पेयर क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ क्रिएट होते ही इलेक्ट्रॉन्स इजीली एनोड वायर पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट आयंस क्या है, इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन्स आयन मैसिव हैं, तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एनोड वायर पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट आयंस को कुछ टाइम लगता है कैथोड पर पहुंचने में। तो आप देखिए कि अगर
एवलांच सिस्टम में देखिए यहाँ से इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सपोज कि यहाँ एक सिंगल पार्टिकल इंसिडेंट हो और ये सिंगल पार्टिकल क्या करे, एक सिंगल आयन पेयर प्रोड्यूस करे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होगा और प्राइमरी एवलांच सेट करेगा और इस प्राइमरी से सेकेंडरी एवलांच सिस्टम सेट होगा। तो इस तरह से मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे इनसाइड गैस चैम्बर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत लाइट हैं इन कंपैरिजन विद आयन, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कलेक्ट कर लिए जाएंगे एनोड वायर पर। बट पॉजिटिव आयन मैसिव होने के कारण ये एक शीट बना लेते हैं किसके अराउंड, एनोड वायर के अराउंड। जैसे कि आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस एनोड वायर की विसिनिटी में क्या करते हैं, एक शीट बना लेते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो एनोड वायर और कैथोड के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से कि अगर ये पॉजिटिव आयंस कैथोड पर नहीं पहुँचे तो उसके बीच में अगर कोई सेकेंड न्यूक्लियर पार्टिकल इस गैस चैम्बर में एंटर होगा तो ये न्यूक्लियर पार्टिकल गाइगर डिस्चार्ज सेटअप नहीं कर पाएगा। क्यों, आप देखिए ध्यान से कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर पर पहुंच जाएंगे बट पॉजिटिव आयन मैसिव होने की वजह से इस एनोड वायर के अराउंड एक शीट बना लेते हैं। तो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो कि हमने रीज़न 5 में सेट की थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब क्या है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। और अगर इस पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई अनदर पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर होगा तो ये फर्दर क्या होगा, डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन पॉजिटिव आयन शीट की वजह से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण अगर सेकेंड न्यूक्लियर पार्टिकल इस मीन टाइम में गैस चैम्बर में एंटर होगा तो वो आउटपुट पल्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जीएम काउंटर में कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर पर पहुंच जाएं तो साथ ही ये पॉजिटिव आयंस भी कैथोड पर पहुंचकर क्या कर ले, फर्दर न्यूट्रलाइज हो जाएं। और अगर इस मीन टाइम में कोई दूसरा न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर हो तो हम उसे भी डिटेक्ट कर पाएँ। आप इसी के साथ एक चीज़ और देखिए कि जब ये पॉजिटिव आयंस कुछ टाइम के बाद इस कैथोड सरफेस पर पहुंचेंगे तो कैथोड पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, फोटोन रिलीज़ करते हैं। अब ये फोटोन कैथोड सरफेस के साथ इंटरेक्ट करके फ़ोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और जब ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन फर्दर एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होगा तो ये फर्दर क्या करेगा, सेकेंडरी एवलांच सिस्टम डेवलप करेगा और इस सेकेंडरी एवलांच सिस्टम के थ्रू ये क्या करेगा, फर्दर एक और पल्स रजिस्टर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सिंगल पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर हो रहा है तो उस सिंगल पार्टिकल की वजह से हमें आउटपुट में मल्टीपल पल्स ऑब्ज़र्व होंगे। मल्टीपल पल्स क्यों ऑब्ज़र्व हो रही हैं, आप देखिए जब एक सिंगल न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से प्राइमरी एवलांच होगा और उसके बाद फर्दर सेकेंडरी एवलांच होगा और इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर पर पहुंचेंगे और पॉजिटिव आयंस कैथोड पर, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, पल्स ऑब्ज़र्व होगी। बट जब ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रलाइज होंगे तो ये फोटोन का इमिशन करेंगे जो कि कैथोड सरफेस के साथ इंटरेक्ट होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन फिर से इनसाइड गैस चैम्बर डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में एक और पल्स मिलेगी। अब ये क्या है, ये एक अनडिज़ायरेबल पल्स है, मींस एक सिंगल पार्टिकल के लिए हमें मल्टीपल पल्स ऑब्ज़र्व होंगी जो कि अनडिज़ायरेबल है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब पॉजिटिव आयंस कैथोड सरफेस पर पहुंच रहे हैं तो ये इन्हें क्या करना है कि इन पॉजिटिव शीट्स को, पॉजिटिव आयन की शीट को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है कि इससे पहले कि इस न्यूक्लियर चैम्बर में सेकेंड पार्टिकल एंटर हो। मींस कि जब एक न्यूक्लियर पार्टिकल
इस चैम्बर में एंटर होगा और क्या करेगा, आउटपुट में पल्स रजिस्टर करेगा, तो सेकेंड पार्टिकल के एंटर होने से पहले फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो डिस्चार्ज क्रिएट हुआ है, इस डिस्चार्ज को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना होगा, ताकि सेकेंड पार्टिकल फर्दर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करे और फिर उसके थ्रू हमें उस सेकेंड पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड पल्स ऑब्जर्व हो। बट अगर सेकेंड पार्टिकल के एंटर होने से पहले ही जब ये आयंस फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करके फिर से एक एवलांच सिस्टम डेवलप करेंगे, तो हमें सिंगल पार्टिकल के लिए मल्टीपल पल्स ऑब्जर्व होंगे, जो कि अनडिज़ायरेबल है। और ये रिक्वायर्ड है कि सेकेंड पार्टिकल के एंटर होने से पहले फर्स्ट पार्टिकल ने जो डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया है उसे गैस चैम्बर से एलिमिनेट करना होगा, ताकि हम सेकेंड पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकें। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग प्रोसेस करते हैं। तो क्वेंचिंग प्रोसेस क्या है कि it is necessary that the discharge caused by first particle is completely quenched before the arrival of next particle. It means the sheet of positive ions should be eliminated so that when second particle enter inside the gas chamber, then it will create now next level discharge and produced second pulse, and we will able to detect this second particle also. Clear? So this process is called the quenching, and the quenching is of two type, either external quenching and internal quenching. So let's we stop here in this video. तो next video में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस पॉजिटिव आयन शीट को क्वेंचिंग के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, और कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे विच आर डेड टाइम, रिकवरी टाइम, एफिशिएंसी और द करेक्टरिस्टिक कर्व दैट इज़ obtained at the output of this GM counter. So thank you students.